إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. باب ہے الفتیا، فتویٰ دینا، وہوا جبکہ وہ واقف کھڑا ہو، علی الدابتی سواری پر، وغیرہا یا اس کے علاوہ کسی اور چیز پر، جانور پر اگر آدمی کھڑا ہے تو اس وقت وہ فتویٰ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. اس کے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت یہ حج کا موقع تھا، تو آپ سواری پہ سوار تھے، لوگوں کا ہجوم بھی بہت زیادہ تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مفتی کا کسی باوقار جگہ پر بیٹھا ہونا اور بالکل اطمینان کی حالت میں ہونا، اس وقت اس سے سوال کیا جا سکتا ہے یا کسی بھی وقت اس سے سوال کیا جا سکتا ہے. تو امام صاحب نے باب قائم کیا ہے کہ کسی بھی وقت جو فتویٰ ہے وہ عالم دین سے لیا جا سکتا ہے، اور عالم دین بھی کسی بھی وقت جواب دے سکتا ہے. ایک مسئلے کا تو یہاں سے یہ اظہار ہے، اور اسی طرح دوسری بات ایک یہ ہے، سنن نبی داؤد میں آپ ایک روایت پڑھ چکے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ایاکم ان تتخذوا ظہور دوابکم منابر، جانوروں کی پشتیں ان کو ممبر مت بناؤ. فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. اللہ رب العزت نے اس لیے انہیں مسخر کیا ہے کہ تم اس پر سوار ہو کر دیگر علاقوں کی طرف جا سکو جہاں آپ جا نہیں سکتے. وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَقْضُوا حَاجَتَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین بنائی ہے تو اس کے اوپر اپنی جو حاجت ہے اس کو پورا کرو. اب یہ دو احادیث ایک دوسرے کے معارض ہیں. ایک طرف ابھی ہم صحیح بخاری میں حدیث پڑھنے والے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، اور بعض میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے سواری پر خطبہ بھی دیا تھا. تو اس بات کا بھی اظہار ہے دونوں کے درمیان جو تطبیقی صورت ہے کہ جانوروں کی پشتوں کو ممبر نہیں بنانا چاہیے، اسی کے اوپر مستقل آدمی کو خطبہ واز یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے. البتہ اگر ضرورت ہو، ضرورت ایسی بن جائے تو پھر آدمی جانور کے اوپر سوار ہے تو کھڑا کھڑا وہ بات بھی کر سکتا ہے، فتویٰ بھی دے سکتا ہے. امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اسماعیل نے، انہوں نے کہا مجھے حدیث بیان کی مالک نے، وہ ابن شہاب سے بیان کرتے ہیں، وہ عیسیٰ بن طلحہ سے بیان کرتے ہیں، وہ عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف فی حجۃ الوداع بمنن، آپ ٹھہرے
हज्जतुल वदा के मौका पर मिना में लिन्नास लोगों के लिए यसअलूनहु लोग आपसे सवाल कर रहे थे। फजाअहु रजुलन इतने में एक आदमी आपके पास आया और उसने कहा लम अशउर मुझे पता नहीं चल सका। फहलकतु तो मैं सर मुंडा बैठा हूँ कबल अन अज़बह इससे पहले कि मैं ज़बह करूँ। कुर्बानी करने से पहले पहले मैं सर मुंडवा चुका हूँ। आपने फरमाया इज़बह वला हरज ज़बह करो कोई हरज नहीं। फजा आखर तो एक दूसरा आदमी आया और कहने लगा लम अशुर मुझे पता नहीं चला। फनहर तो कबल अन अरमिया तो मैंने रमी से पहले टिंड बनवा ली है। तो आपने फरमाया इरमी वाला हरज अब रमी कर लो कोई हरज नहीं। फमा सुइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं सवाल किया गया नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अन शैइन किसी चीज के बारे भी कुद्दिमा जो पहले कर ली गई वला उखिर और ना उस चीज के बारे में कि जो मौखर की गई इल्ला काल मगर आपने यही फरमाया इफ़ाल वाला हरज अब कर लो कोई हरज नहीं है। अच्छा इमाम साहब ने ये बाब कायम किया था कि वह हुआ वाकिफुन अला दाब्बा जबकि इस हदीस मुबारका में आपके जानवर पे सवार होने का तज़किरा नहीं है। तो इमाम साहब असल में इशारा करना चाहते हैं एक दूसरी रिवायत की तरफ जो 1738 नंबर पर आगे इंशाल्लाह आएगी। उसमें अल्फाज हैं वक़फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नाक़तिही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी के ऊपर खड़े थे मतलब सवारी पर बैठे हुए थे। तो आप सवारी के ऊपर थे तो उसमें ये अल्फाज हैं इसलिए इमाम साहब ने जो बाब कायम किया हदीस इस बाब के साथ बिल्कुल वाज़े मुताबिकत रखती है। अच्छा दूसरा यहाँ ये जो सवाल उन्होंने किए हैं, असलन तो ये बातें इंशाल्लाह आगे किताबुल हज में आएंगी। तो ये यौमुन नहर को जो काम किए जाते हैं ना वो पांच काम बितरतीब हुज्जाज करते हैं। पहले नंबर पर रमी करते हैं ये जो जमरे को कंकरियां मारी जाती हैं। दूसरे नंबर पर कुर्बानी की जाती है। तीसरे नंबर पर हलक किया जाता है जिसने सर मुंडवाना है मुंडवाए या फिर कटवाना चाहे कटवा ले। चौथे नंबर पर बैतुल्लाह का तवाफ होता है। और पांचवें नंबर पर सफा मरवा की साई होती है। यही तरतीब जरूरी है। ये इसी तरतीब के साथ यानी हज का तरीका है। लेकिन अगर भूल कर कोई आदमी इनमें तकदीम ताखीर कर ले कोई पहले कर ले कोई काम बाद में कर ले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि करो कोई हरज नहीं। ये जो है ना वला हरज इसमें ये बात भी शामिल है कि कफारा भी नहीं है। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने अ, इसके मुतालिक जो है एक रिवायत जिक्र की है और उसके अल्फाज हैं वलम यअमुर बिल कफ़ारा। तो हमें ये जो हदीस के मसादिर हैं वहाँ किसी हदीस में ये लफ्ज़ मिले तो नहीं है। अलबत्ता रिवायत मुझे यही लगता है कि ये रिवायत नहीं है। हो सकता है ज़ुहूल हो गया हो हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह से। बहरहाल वला हरज में ये बात ज़रूर शामिल है। जब आपने फरमा दिया कि कोई हरज नहीं तो जाहिर है कि कफ़ारा भी नहीं। अगर कफ़ारा होता तो आप अलग से उसका तज़किरा कर देते। बहरहाल इसकी बकिया मबाहिस इंशाल्लाह हम किताबुल हज में पढ़ेंगे। तो यहाँ हदीस का बाब के साथ ताल्लुक बिल्कुल वाज़े है कि आप इस हुजूम में ज़ाहिर है रश भी बहुत ज़्यादा था सब कुछ था लेकिन आपसे सवाल किया गया तो आपने जवाब दिया। यहाँ एक और बात भी समझें कि दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि फतवा देना और एक होता है दरस देना मतलब सबक पढ़ाना। तो मैं समझता हूँ इन दोनों में चीज़ों में बहरहाल फ़र्क करना चाहिए। आम राह चलते आलिम से सवाल तो किया जा सकता है लेकिन बाकायदा जो पढ़ा जाता है कि आप उस्ताद से आकर पढ़ें इसके लिए उस्ताद को एक बावकार जगह पे बैठा होना उसका बेहतरीन अंदाज के साथ होना ये सारी चीज़ें बहरहाल इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। तो आलिम दीन को भी नाराज़ नहीं होना चाहिए अगर वो किसी ऐसी हालत में है लेकिन किसी ने सवाल कर ले तो उसे चाहिए उसका जवाब दे दे। सरे दस मुझे यहाँ एक वाक़या याद आ गया। हमारे वालिद गिरामी हफिज़हुल्लाह मैं उस वक़्त उनसे सही बुखारी पढ़ता था। ये उस साल की बात है। वो उम्रे के सफ़र से वापस आए। तो अब जिस तरह मेरी दानिश में है मुझे जिस तरह याद है वो इस तरह था कि वो अभी आए ही हैं सामान अभी रखा है। तो इतने में जोहर की अजान हो गई। तो वालिद साहब बैठे नहीं फौरन उन्होंने वुजू किया और नमाज के लिए निकल पड़े। आप समझ सकते हैं कि जब आदमी उम्रे के सफ़र से वापस आता है या हज के सफ़र से आता है तो उसको कितनी ज़्यादा थकावट होती है। हफ्ता हफ्ता तो उसका सोने में ही गुजर जाता है। तो वालिद साहब नमाज पढ़ के आए हैं और आकर वो सो गए आराम कर रहे थे। इतने में एक साहिब आए दरवाज़ा नॉक किया। तो मैं जाकर मालूम किया कौन है कहाँ से तशरीफ़ लाए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके वालिद साहब से
ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اسے نزاکت بتائی اور کہا کہ وہ اس طرح سفر سے آئے ہیں اور ابھی وہ آرام کر رہے ہیں، تو آپ ویسے تشریف رکھیں، لیکن آپ اگر واپس بھی چلے جائیں تو موبائل پہ دریافت کر لیجئے گا۔ اس طرح میں نے بات کی، لیکن وہ اپنی بات پہ بضد تھے کہ نہیں، میں نے پوچھنا ہے کیونکہ میں دور سے آیا ہوں، پوچھ کر ہی جاؤں گا۔ اس کو دوسرے بھائی نے بھی منع کیا، لیکن وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں اور میں پوچھ کر جاؤں گا۔ ہم نے اسے کہا کہ پھر ہم دروازہ کھولتے ہیں، اور ہم تو بیدار نہیں کریں گے، آپ خود بیدار کر لینا۔ اس نے کہا میں کر لوں گا۔ وہ آیا، بیٹھا، اس نے بیدار کیا، تو والد صاحب اٹھے اور الیک سلیک ہوئی، تو اس نے اپنا سوال پیش کیا، تو انہوں نے اس کا بڑی شائستگی کے ساتھ، بڑے اچھے انداز کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ بس میرے خیال میں کوئی 1 2 منٹ کی اس کی یہ نشست تھی، اور وہ اپنے سوال کا جواب معلوم کر کے تو روانہ ہو گیا۔ ہم اس وقت تو بڑا حیران ہوئے اس بات پر، لیکن اب یہ مسئلہ پڑھ رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے یہ علماء، یہ ماشاء اللہ کوشش کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ بھی دیکھیں، ہجوم میں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے اس کا جواب دیا ہے۔ باب من اجاب الفتیا باشارت الید والراس، باب ہے جس شخص نے سوال کا جواب دیا ہاتھ یا سر کے اشارے کے ساتھ۔ تو اصل تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ سائل کو تفصیل کے ساتھ جواب دیتے تاکہ وہ بات کو بالکل سمجھ جائے، لیکن بسا اوقات اشارے کے ساتھ بھی بات سمجھائی جا سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بعض دیگر صحابہ اور صحابیات سے آتا ہے کہ آپ نے اشارے کے ساتھ جواب دیا۔ آ، اشارے کے ساتھ جواب کافی شافی ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ جب اشارے کے ساتھ جواب دے دیا جائے کہ ہاں، مطلب یہ آپ جو پوچھ رہے ہیں وہ ایسا ہی ہے، مطلب جائز ہے یا حلال ہے جو بھی ہے، تو سائل کے ذہن میں اگر مزید سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ سائل کا مزید سوال نہ کرنا اور اشارے پر اکتفا کر لینا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اشارے کے ساتھ جواب دیا جا سکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی موسیٰ بن اسماعیل نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی وہیب نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ایوب نے، وہ عکرمہ سے بیان کرتے ہیں، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ سے سوال کیا گیا آپ کے حج میں، تو آپ نے اس آدمی نے کہا ذبحت قبل ان ارمیہ، میں نے جانور ذبح کر لیا رمی سے پہلے۔ میں نے بتایا تھا نا، پہلا کام رمی ہے اور دوسرا کام قربانی ہے، لیکن اس نے الٹ کر لیا۔ فاومع بیدہ قال ولا حرج، تو آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر کے فرمایا کہ مطلب کوئی حرج نہیں۔ اب یہ فاومع بیدہ، یہ محل استدلال ہے، جس وجہ سے امام صاحب نے اس کو اس باب میں ذکر کیا ہے، محل استدلال اس کو کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا حلقت قبل ان اذبح، تو فاومع بیدہ ولا حرج، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ، تو یہ جو باب میں تھا نا کہ ہاتھ کے اشارے کے ساتھ جواب دینا، تو ہاتھ کے اشارے کے ساتھ جواب دینے کے متعلق ایک یہ روایت ہے، اور دوسری آگے یہ روایت ہے۔ امام فرماتے ہیں جس بیان کی مکی بن ابراہیم نے، یہ مکی ان کا نام ہی تھا، یہ مکہ کی طرف نسبت نہیں ہے۔ امام صاحب کے یہ معروف استاذ تھے، اور ان کے یعنی ان کے واسطے سے جب امام صاحب بیان کرتے ہیں نا تو نبی علیہ السلام کے درمیان پھر 3 واسطے ہوتے ہیں، تو یہ امام صاحب کی سب سے اعلی سند ہوتی ہے۔ مکی بن ابراہیم، ان کے بارے میں مشہور ہے انہوں نے 60 حج کیے تھے اور 60 ہی شادیاں کی تھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں خبر دی حنزلہ بن ابو سفیان نے، وہ سالم سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا یقبض العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، قبض کر لیا جائے گا، وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ وَالْفِتَنُ، جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے، وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، اور حرج یہ کثرت کے ساتھ ہو جائے گا، حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ قیل یا رسول اللہ ومل حرج، آپ سے پوچھا گیا کہ حرج کیا ہے، تو فقال، آپ نے کہا ہاکذا بیدہ فحرفها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا، فحرفها، تو اس کو تھوڑا سا ترچھا کیا۔ ہاتھ کے ساتھ ایک اشارہ ہوتا ہے نا، جس طرح ہم سیدھا ہاتھ کر کے کسی کو اسلام کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، اسلام کر رہے ہوتے ہیں، ایک ترچھا ہوتا ہے ہاتھ، تو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے ترچھا کر کے آپ نے اشارہ کیا کہ انہ یرید القتل، گویا کہ آپ قتل کا ارادہ چاہتے ہیں، آپ قتل کے متعلق بتانا چاہتے ہیں۔
तो ये जो हाथ को तिरछा किया वो इस तरह था कि ये जो तलवार होती है वो भी तिरछी करके आप उसको मारते हैं। तो इस तरह आपने इशारा करके दिखाया कि हर्ज से मुराद कत्ल है, कि कत्लो गारत बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये भी इस बात की दलील है कि हाथ के साथ नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल का जवाब दिया है। और साइल इसी आपके इशारे में दिए गए जवाब को समझ गया। आगे जो तीसरी रिवायत इमाम साहब ने इस बाब में पेश की है, तो ये सर के साथ इशारे के जवाब के हवाले से है। इमाम फरमाते हैं हमें हदीस बयान की मूसा बिन इस्माइल ने, उन्होंने कहा हमें हदीस बयान की वहाइब ने, उन्होंने कहा हमें हदीस बयान की हिशाम ने, वो फातिमा से बयान करते हैं, वो अस्मा से बयान करती हैं। उन्होंने कहा अतई तो आयशा वही तुसल्ली, ये फातिमा पोती है ना इनकी अस्मा की, तो वो अपनी जद्दा से बयान करती हैं। तो अस्मा बहन है आयशा की, ये दोनों बहनें हैं। तो अस्मा कहती हैं कि मैं आयशा के पास आई, वही है तुसल्ली, जबकि वो नमाज पढ़ रही थी। फकुल तो मा शानुन्नास, मैंने कहा कि लोगों का क्या मामला है। फअशारत इलस्समा, तो उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया। ये इशारा हाथ के साथ था, जो आसमान की तरफ इशारा किया। अच्छा, फ़इज़ा नासु क़ियामुन, तो क्या देखा कि लोग क़ियाम की हालत में हैं। फ़क़ालत सुब्हान अल्लाह, तो उन्होंने कहा सुब्हान अल्लाह। कुल्तु आयतुन, मैंने कहा कि कोई निशानी है। फ़अशारत बिरासिहा, तो उन्होंने अपने सर के साथ इशारा किया, आई नाम, कि हाँ ऐसा ही है, कोई निशानी है। अब इशारा जो है ना, ये हाथ के साथ इशारा भी इस हदीस से आ गया, और अपने सर के साथ इशारा भी आ गया। यहाँ महल्ले इस्तिदलाल जो है फ़अशारत बिरासिहा है, क्योंकि इसका बाप के साथ ताल्लुक है। तो कहती है मैं खड़ी होगी, हत्ता तजल्लानिल गशियु, यहाँ तक कि बेहोशी मुझ पे छा गई। फजअलतु, तो मैं शुरू हुई, असुब्बु अला रअसिल मा, अपने सर पर पानी बहाने लगी। ये कौन कह रही है? अस्मा। आयशा तो पहले से नमाज पढ़ रही थी ना सलातुल कुसूफ नबी अलैहिस्सलाम के साथ। अस्मा भी साथ खड़ी हो गई, चूंकि क़याम बहुत लंबा था तो गशी तारी हो गई। अपने सर पे कहती मैं पानी डालना शुरू हो गई। फ़हमिद अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व असना अलैहि, तो नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अज़्ज़ा व जल की हम्द व सना बयान की। तुम मकाल, फिर आपने फरमाया मा मिन शैइन, नहीं है कोई चीज, लम अकुन उरीतुहु, जो मुझे नहीं दिखाई गई थी, इल्ला रअयतुहु फी मकामी, मगर आज मैंने अपनी इस जगह पर देख ली है। हत्तल जन्नत व नार, यहाँ तक कि जन्नत और जहन्नम भी मैंने यहाँ खड़े होकर देख ली है। फऊही इलैया, तो मेरी तरफ भी वही की गई है, अन्नकुम तुफ्तनून फी कुबूरिकुम, कि तुम अपने कब्रों में आजमाए जाओगे। मिसला औ करीबा, मिसल का लफज बोला या करीब का लफज बोला, ये आ, फातिमा बयान कर रही हैं। यानी फातिमा कहती हैं कि मिसल का लफज बोला था या करीब का लफज बोला था। मुझे याद नहीं रहा कि अस्मा ने कौन सा लफज बोला था। लादरी ये दालिका कालत अस्मा, अस्मा ने कौन सा लफज बोला था, मिसल का बोला था या करीब का बोला था। तो आपने फरमाया कि तुम्हें आजमाया जाएगा कब्रों में मिसला औ करीबा मिन फितनतिल मसीह दज्जाल, मसीह दज्जाल के फितने के करीब या उस जैसी आपकी आजमाइश होगी। युकाल, कहा जाएगा मा इल्मुका बिहाज़ा रजुल, इस आदमी के बारे तेरा क्या इल्म है। फअम्मल मुमिनु अविल मूकिनु, तो रहा मोमिन या मोकिन। अब मोमिन का लफज बोला था या मोकिन का। फातिमा कहती है मुझे याद नहीं रहा कि अस्मा ने कौन सा लफज बोला था। अल्लाह अकबर, ये देखें हदीस में कितनी एहतियात है। एक एक लफज मुहद्दिसीन और जो खवातीन है हदीस बयान करने वाली, वो भी इन चीज़ों का देखें कैसा ख्याल रखती। तो फ़यक़ूल हुआ मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो जो मोमिन है या मोकिन है वो क्या कहेगा कि वो मोहम्मद है जो अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जा अना बिल बैयिनात वल हुदा, वो हमारे पास हिदायत और वो हमारे पास वाज़ेह दलाइल और हिदायत लेकर आए। फ़अजबना व तबअना, तो हमने जवाब दिया और उनकी इत्तिबा की। हुआ मोहम्मद, वो मोहम्मद है, सलासन, 3 बार। फ़युकाल, तो कहा जाएगा नम, सो जा। अ, जी, अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये मलाइका उसको कहेंगे जो सवाल वगैरह करने आएंगे ना, वो कहेंगे नम सालिहा, सो जाओ, और सही सलामत हालत में, मतलब आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। कद अलिमना इन कुंत लमूकिनम बिही, ताकीक हमने जान लिया कि तू लमूकिनम बिही, उस पर जरूर यकीन करने वाला है। वो अमल मुनाफिक, और रहा मुनाफिक, अबिल मुर्ताब, यह शक में पड़ा हुआ। अब फातिमा कहती मुझे याद नहीं रहा कि अस्मा ने कौन सा लफ्ज बोला था, मुनाफिक का या मुर्ताब का।
تو वो कहेगा ला अदरी, मैं नहीं जानता, समिअतु नासा, मैंने लोगों से सुना था, यकूलून शय्यन, वो कुछ कहते थे, फकुलतु, तो मैं भी उनके पीछे चल पड़ा और वही कुछ कहना शुरू कर दिया। अच्छा, ये जो रिवायत है असलन तो ये सलातुल कुसूफ वगैरह में भी आएगी। तो यहाँ आपकी बात समझें कि इशारे के साथ जवाब दिया है आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने, तो नमाज तो उनकी नहीं टूटी। और अगर कोई कहे कि ये तो अम्मी जान का अपना अमल है जी, नबी इस्लाम का अमल तो नहीं, तो अल्लाह के बंदो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए जो सहाबा और सहाबियात के जो आमाल हैं, इनको भी ये हुक्मन मरफू का दर्जा इन्हें हासिल है। और फिर बल्कि मुझे याद आया, सही बुखारी में आगे 741 नंबर पर हम रिवायत जाके पढ़ेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वल्लाहि मा यख्फा अलैया रुकूउकुम वला खुशूउकुम व इन्नी लअराकुम वरा ज़हरी, तुम्हारा रुकू और खुशू मुझसे मख्फी नहीं रहता, मैं अपने पीछे से तुम्हें देख रहा होता हूँ। नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा था कि आप नमाज की हालत में भी पीछे जो आपके साथ नमाज पढ़ने वाले या पढ़ने वालियां होती हैं, आप उनको देख रहे होते थे, तो जो कमी होती थी आप उसकी इस्लाह करते थे। तो अगर आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने इशारा वगैरह किया, गलत था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह क्यों ना की? तो एक मसला तो यहाँ से ये साबित हुआ जिसका बाप के साथ ताल्लुक है और जो यहाँ पे मकसूद है। बाकी और चीजें भी आप समझें यहाँ से कि नमाज फर्दी हो या नफली हो, उसमें थोड़ी सी हरकत किसी जरूरत की वजह से की जा सकती है। देखें, अस्मा ने अपने सर पे पानी डाला है और ये नमाज की हालत में डाला है। इसी तरह गशी जो तारी होती है, इसके साथ अगर ये गशी ज्यादा हो तो इसके साथ वुजू टूट जाता है। लेकिन ये मामूली गशी थी, क्योंकि गशी तारी हो तो आदमी को तो होश नहीं रहती, जबकि अस्मा रदी अल्लाह अन्हा अपने सर पे पानी भी डाल रही है, तो मालूम हुआ ये थोड़ी सी गशी है। आगे वैसे किताबुल वुजू में बाब इमाम साहब कायम करेंगे, वो आएगा बाबू मल्लम यतवद्दा इल्ला मिनल गशील मुथकिल। तो यहाँ उन्होंने बयान किया है गशील मुथकिल में कि जिसे बहुत ज्यादा गशी तारी हो जाए तो उसका वुजू बहरहाल जाता रहेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तो दज्जाल का फितना आप जानते हैं, चूंकि सबसे बड़ा फितना है, जिस तरह से मुस्लिम में आप हदीस मुबारक पढ़ रहे हैं, माँ बैन खल्क़ि आदम इला अन तक़ूम अस्साअ फितना अकबर मिन फितनति दज्जाल। तो इस कदर ज्यादा आजमाइश कब्रों में होगी। यहाँ जो है ना, युकाल मा इल्मु कभी हादर रजुल, इसके मुतालिक एक बात मैं यहाँ जिक्र करूँ, वो ये जो बिहादर रजुल का लफज है, यहाँ से अहले बिदआ ये कहते हैं कि नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में पेश होते हैं, तभी तो हाजा का लफज इस्तेमाल होता है। अच्छा, इधर गौर कीजिएगा कि ये बात किस कदर गलत है। अल्लाह अकबर कबीरा। पहली बात तो ये समझें इस हवाले से कि दो चीजें होती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जी, एक चीज होती है ये जो वजूद होता है ना, इसकी मैं जिक्र कर रहा था कि दो सूरतें होती हैं। एक को कहा जाता है माफिल आयान, माफिल आयान, और दूसरी सूरत होती है माफिल अजहान। माफिल आयान का मतलब क्या है? कि जो चीज नजर आ रही है, सामने मौजूद है। माफिल अजहान क्या होती है? कि जो सामने मौजूद तो नहीं बल्कि जहन के अंदर मौजूद है। और इसकी मिसालें लुग़त अरब में तो बेशुमार है, हमारे यहाँ उर्दू लुगत के अंदर भी इसकी जो है चीजें हैं वो बेशुमार हैं। तो आप बसा औकात इसका लफज बोल रहे होते हैं जबकि वो बंदा सामने मौजूद नहीं होता, उसका करीना होता है, उसकी बात चल रही होती है, आप ये लफज बोल लेते हैं। तो बहरहाल माफिल आयान और माफिल अजहान, इन दोनों बातों को समझने की जरूरत है। दूसरा इसका जवाब ये दिया जा सकता है, पीछे जो हम हदीस मुबारक पढ़ रहे हैं ना, किताब बदिल वही में हमने पढ़ी थी या किताबुल ईमान में? किताब बदिल वही में हमने पढ़ी थी ना, हदीस हिरकल जो थी। अच्छा, उसमें उसने बात क्या की थी, अय्युकुम अकरबु नसबन बिहादा रजुल अल्लज़ी यज़अमु अन्नहु नबी, इस शख्स के ज्यादा करीब कौन है जिसने नबूवत का दावा किया, तो इसका लफज बोला। तो क्या नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हिरकल के पास मौजूद थे उधर? ऐसा तो नहीं था, तो हादा का लफज बोला। इसी तरह उसने अपने तर्जुमान से कहा था, कुल्लहुम इन्नी साइलुन हादा अन हादा रजुल, इनसे कहो कि मैं अबू सुफियान से
इस नबी के बारे में, इस आदमी के बारे में पूछना चाहता हूँ, तो अगर ये झूठ बोले तो तुम इसकी तकजीब कर दो। तो हादा का लफ्ज उसने बोला था। तो जाहिर है कि इस हादा से मुराद जो माफिल अदहान है, वो इससे चीजें मुराद हैं। इसी तरह तीसरा जवाब इसका ये है, अल्लाह अकबर कबीरा। जो लोग कहते हैं कि कब्र में नबी अलैहिस्सलाम पेश होते हैं, तो जाहिर है जब नबी अलैहिस्सलाम कब्र में पेश होते हैं, फिर आपको एक एक बंदे का फिर पता होना चाहिए ना। जबकि आगे चलकर आप 956 नंबर पर रिवायत पढ़ेंगे सही बुखारी में ही, वो जो औरत फौत हो गई थी जो मस्जिद की सफाई करती थी, तो सहाबा किराम ने वैसे ही उसको दफन कर दिया। तो आपने क्या फरमाया था, अफला कुंतुम आदम तुमूनी बिही दुल्लूनी अला कब्रिही औ काला कब्रिहा फाता कब्रहु फसल्ला अलैहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, आओ अब उसकी खबर मुझे दिखाओ, फिर आपने उस पर खड़े होकर जनाजा पढ़ा था। तो अगर आप हर हर बंदे की कब्र में पेश होते हैं तो आपको तो पता था, सहाबा किराम से फिर आपने पूछा क्यों। इसी तरह चौथा जवाब इसका ये है, मा इल्मु का बिहादर रजुल का, कि कब्र में जो मौजूद शख्स है वो क्या कहेगा, ये देखें, हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब यहाँ हादा मोहम्मद रसूलुल्लाह तो नहीं है, यहाँ हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो यहाँ से भी इस बात का यानी जवाब मौजूद है। तो असल बात ये है कि ये अहले बिदा अपना कोई ज़ेन बना लेते हैं, फिर उस ज़ेन के मुताबिक इधर उधर से दलाइल तलाश करने की कोशिश करते हैं, जो कि सही से इनको यानी मिल नहीं पाते। अल्लाह अकबर। तो आप देखें, मोमिन और मुकिन जो है, जाहिर है यकीन और ईमान ये एक ही चीज़ें हैं। और ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे आप जानते हैं, यकून अल यकीन अल मुनाफी लिशक। तो ऐसा यकीन होना चाहिए जिसमें शक की नफी मौजूद हो। तो ईमान मोमिन बंदा ही असल मुकिन होता है, उसी को यकीन होता है। तो जो मुर्ताब है ये मुनाफिक है। मुनाफिक का मामला तो वाज़ेह है, मुर्ताब का मामला समझे कि दुनिया में मुख्तलिफ तो उसने सिलसिले बनाए हुए हैं। अब देखें रब तबारक व तआला का वो जवाब किस तरह दे सकता है, जबकि उसने इबादत के लिए बीसियों मराकज उसने बनाए हैं। सुबह किसी कबर को सलाम करता है, शाम किसी को सलाम, सुबह किसी कबर का मुजाविर बना हुआ है, फलां कबर पे चादरें चढ़ा रहा है। तो उस बदबख्त ने जब उससे सवाल होना है कि तेरा रब कौन है, मर रबुक, तो क्या जेहन में आएगा उसके। रब तबारक व तआला को तो दुनिया में जाना ही नहीं था उसने। इसी तरह जिन लोगों ने मुख्तलिफ सिलसिले बना रखे हैं, फिक्र में फलां को अपना इमाम बनाया हुआ है, अकीदे में फलां को इमाम, तसव्वुफ में फलां को इमाम बनाया है। अब मुख्तलिफ ये जो सिलसिले उसने बनाए हैं, तो वो मन नबीयुक का जवाब क्या दे पाएगा उधर। जाहिर है वो मुर्ताब ही है। तो जब उसके पास कोई जवाब ही नहीं है, तो फिर वो यही कहेगा कि मुझे इस बारे में कोई मालूम नहीं है, ला अदरी समिअतु अन्नास यक़ूलून शैअन फ़क़ुल्तुहु। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान इसको पुख्ता करें, और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी दिलो जान से नबी और रसूल माने। अच्छा, ये जो बाब के साथ हदीस का दोनों तीनों अहादीस का ताल्लुक था वो आप पढ़ चुके हैं। हम आगे चलते हैं। इमाम फरमाते हैं, बाबू तहरीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़द अब्दुल कैसी अला अन यहफ़ज़ुल ईमान वल इल्म व युख़बिरु मन वराअहुम। बाब है तहरीज़ नबी, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उभारना, तरगीब देना। वफ़द अब्दुल कैस को किसकी तरगीब देना, अला अन यहफ़ज़ुल ईमान, कि वो ईमान को याद करें, हिफज करें, वल इल्म और इल्म को भी याद रखें, व युख़बिरु और खबर दें, मन उन लोगों को, वराअहुम जो उनके पीछे हैं। तो इमाम साहब ने इस बाब में इस बात का तज़किरा किया है, चूंकि किताबुल इल्म हम पढ़ रहे हैं, तो इल्म की बात को हिफज करना चाहिए, इल्म की बात को याद रखना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात यह है कि इल्म को याद रख के दीगर लोगों तक इस इल्म को पहुंचाना चाहिए। वकाल मालिक बिन हुवैरिस, मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, क़ाल लना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, इरजो इला अहलिकुम, अपने घर वालों की तरफ वापस पलटो, फ़अल्लिमूहुम, तो उन्हें तालीम दो। जाहिर है जब तालीम आदमी देगा, खुद तालीम उसको याद होगी तो आगे देगा ना। तो दोनों चीजों का यहाँ से इस इजहार होता है इस बाब से। एक चीज क्या है, इल्म को याद करना, और दूसरा है इल्म को आगे फैलाना। वैसे जामे तिर्मिजी में अबवाबुल इल्म में जो आप हदीस पढ़ के आए, 2658 नंबर, उसमें अल्फाज नज़र अल्लाहु मरअन समिअ मकालती फवआहा व हफिज़हा व बल्लगहा। तो इसमें इल्म के जो तीन दर्जात हैं वो आपने पढ़े थे। पहला दर्जा क्या है, इल्म का समा, इल्म को सुनना, इल्म की मजालिस में शिरकत करना। और दूसरा दर्जा क्या है,
समा के बाद, सुन लेने के बाद उसको समझना, इलम को समझना। और फिर तीसरा दर्जा क्या है, इलम को याद करना, हिफज करना। और चौथा दर्जा फिर आगे उसकी तबलीग है, उस इलम को आगे पहुंचाना। तो ये चार दर्जात हैं इलम के। और इन चारों पर इंसान को चाहिए वो अमल करे। इलम की बात, अच्छी बात, किताब और सुन्नत वाली बात जहां से मिले वो लेनी भी चाहिए, सुननी चाहिए, फिर समझनी चाहिए, फिर उसको याद करना चाहिए, और फिर आगे उसको पहुंचाना चाहिए। इसके मुतालिक अभी जो हम हदीस मुबारक पढ़ने वाले हैं, ये पहले हम पढ़ भी चुके हैं। पीछे आप जो है ना 53 नंबर पर ये हदीस मुबारक पढ़ चुके हैं, तो अभी सिर्फ मैं यहाँ इसका मतन पढ़ूंगा। इमाम फरमाते हैं, हदथना मोहम्मद बिन बशार قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو القوم؟ قالوا ربيعة. فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة. من شقة بعيدة، ये इसका मतलब है बहुत दूर दराज फासले से। ये लफ्ज पहले नहीं गुजरा था ना, मिन शुक्कतिन बईदा, दूर दराज फासले से हम आपके पास आए हैं। الله أكبر كبيرا. وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة. قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير. قال احفظوه وأخبروه من وراءكم. इमाम साहब ने ये हदीस दोबारा पेश की है इस जुमले की वजह से। इहफज़ूहु, ये इल्म की बातें आपने की ना, कहा इसको याद करो, और व अखबिरूह मन वराअकुम, और तुम्हारे पीछे जो लोग हैं उनको इनके मुतालिक बताओ भी। अब ये देखें, इल्म की बात भी थी और ईमान की बात भी थी। आपने ईमान का उनको हुक्म दिया, तो ईमान इल्म ही है। तो इस वजह से इमाम साहब ने ईमान का भी बाब के अंदर तज़किरा किया है। वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उमूमी फरमान भी है, बल्लिगु अन्नी वलो आया, मुझसे एक आयत भी सीखते हो तो उसको भी आगे पहुंचा दो। अल्लाह अकबर कबीरा। जी, हम आगे चलते हैं। बाबुर्रिहलती फिल मसअलति नाजिलति व तालीमी अहली। अर्रिहला का मतलब है सफर करना, फिल मसअलति नाजिला, पेश आने वाले मसले में, व तालीमी अहली, और घर वालों को तालीम देने का बयान। इस बाब में इमाम साहब ने जिक्र किया है कि अचानक कोई मसला पेश आ जाए तो फिर क्या किया जाए। देखें, आप एक ऐसे इलाके में हैं, आपको कोई मसला दरपेश आ गया, आप क्या करेंगे। तो इस हवाले से फुकाहा की मुख्तलिफ आरा थी। कुछ लोग कहते थे कि जो जेहन में आए वो कर ले, या लोगों की जो अक्सरियत हो उस पर अमल कर ले। तो ऐसा नहीं है। इमाम साहब ये बताना चाहते हैं कि जब मसला पेश आए ना, तो फौरी तौर पर अहले इल्म की तरफ सफर करना चाहिए। आपके इलाके में कोई आलिम नहीं है तो आप वहां से सफर करके आलिम दीन की खिदमत में हाजिर हों, और उससे मसला जाकर पूछें और फिर उस पर अमल करें। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, उल्टा काम कर लेते हैं, और बाद में आकर आलिम से पूछ रहे होते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे किया था, तो अब ठीक है ये। और अल्लाह के बंदो, हमसे पूछने का अब तुक क्या बनता है। सवाल उस वक्त किया करें जब सवाल की जरूरत हो। तो इमाम साहब यहाँ से ये जिक्र करना चाहते हैं। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं, इमाम साहब रहमहुल्लाह ने बाब कायम किया था इल्म के लिए निकलना, तो वो हम पढ़ आए हैं। तो यहाँ असल में मसला नाजिला का ताल्लुक है कि अचानक कोई मसला पेश आ जाए तो उस सूरत में भी सफर ही किया जाएगा। अगर इसका मतलब ये हो कि इल्म के लिए निकलना, तो फिर पीछे जो हम बाब पढ़ रहे, यानी इल्म के लिए निकलना, तो फिर इसका ये दोनों सेम हो जाएंगे। कोई यानी इनके दरमियान जो है ना वो तफरीक नहीं रह जाएगी। इसलिए उसका मतलब क्या करना है बाप का, इलम के लिए निकलना। फिर वो निकलना खा
खुश्की के रास्ते से हो या समंदर पर हो, जैसे भी हो वो हमने सब पीछे पढ़ लिया। यहाँ क्या है कि अचानक मसला पेश आया है, उस सूरत में क्या करना है? इज्तिहाद करके उस पर अमल कर लेना है, या किसी आलिम की तरफ सफर करना है? यहाँ ये मसला है। इमाम फरमाते हैं, हमें हदीस बयान की मोहम्मद बिन मुकातिल अबुल हसन ने, उन्होंने कहा हमें खबर दी, अब्दुल्ला ने उन्होंने कहा हमें खबर दी उमर बिन सईद बिन अबू हुसैन ने, उन्होंने कहा मुझे हदीस बयान की अब्दुल्ला बिन मुलैका ने, वो उकबा बिन हारिस से बयान करते हैं कि उन्होंने तज़व्वज इब्नतन, शादी की, इब्नतन लि अबी इहाब इब्न अजीज, अबू इहाब बिन अजीज की बेटी के साथ। किसने शादी की है? उकबा बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु ने। अच्छा, फ़अतत हुमराअतुन फ़क़ालत, तो एक औरत उनके पास आई और कहने लगी, इन्नी कद अर्दअतु उक़बता वल्लती तज़व्वज, मैंने दूध पिलाया है उकबा को, वल्लती और उस औरत को, तज़व्वज जिसके साथ उसने शादी की है। मतलब ये दोनों तो आपस में रज़ाई बहन भाई हुए, इनका तो निकाह नहीं हो सकता। फ़क़ाल लहा उकबा, उकबा ने उसे कहा, मा अअलमु, मुझे तो नहीं मालूम, अन्ना की अर्दा तीनी, कि तूने मुझे दूध पिलाया है, वला अखबर तीनी, ना तूने मुझे बताया है। फ़रकिब इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीना, तो वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वो सवार हुए, मदीना की तरफ। फसअलहु, तो आपसे सवाल किया। तो फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैफ़ वक़द क़ीला, कैफ़ा, अब ये कैसे हो सकता है, तुम कैसे इकट्ठे रह सकते हो, वक़द क़ीला, जबकि बात कह दी गई, उस खातून ने कह दिया कि मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया है, अब उसकी बात के बाद तुम दोनों कैसे इकट्ठे रह सकते हो? फफारकहा उकबा, तो उकबा ने फिर उसको जुदा कर दिया। वनकहत ज़ौजन गैरा, फिर उसने इनके अलावा किसी और आदमी से शादी कर ली। मसला क्या था? बात क्या था? कि अचानक कोई मसला पेश आ जाए तो सफर किया जाए। अब देखें, 300 400 किलोमीटर का ये जो सफर है, ये उकबा रदी अल्लाह अन्हु ने, आप देखें कि वो किया है। अल्लाह अकबर कबीरा, खुद कोई अमल अपनी तरफ से नहीं किया है। पहले असल में ये जो इन्होंने बात की है ना कि मा आलम अन्ना की अर्दाअतिनी वला अखबर तीनी, तो मालूम ये होता है कि पहले बकायदा कोई तहरीरी सूरत में भी ये सारी तफसील लिखी जाती थी कि फलां औरत ने फलां को दूध पिलाया है, क्योंकि उस वक्त ये आम था, ताकि बाद में अंसाब में नसब में जाकर परेशानियां ना हो। तो उकबा रदी अल्लाह अन्हु के घर कोई ऐसी तहरीर नहीं थी जिस पे लिखा हो कि फलां औरत ने मुझे दूध पिलाया है। इसलिए उन्होंने कहा कि मा आलम अन्ना की अर्दातिनी। फिर साथ ही शिकवा भी उन्होंने किया, वला अखबरतीनी, कि जब मैं शादी कर रहा था उस वक्त तो तूने मुझे बताया नहीं। तो गोया ये शिकवा भी किया कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मालूम भी नहीं था, मालूम नहीं था, तभी तो उन्होंने ये शिकवा भी साथ किया। तो बाब के साथ जो मुनासबत है, मल्ल इस्तिदलाल ये है कि उन्होंने सफ़र किया, बैठ कर घोड़े पर, और बाकायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और मसला दरियाफ्त की। बाकी इसकी तफसीलात आगे किताब शहादात में आएंगी कि एक खातून की गवाही मोतबर है या नहीं है। इसके मुतालिक अभी बस इतनी बात समझ लें कि जिस चीज़ का ताल्लुक हो ही औरत के साथ, जिस तरह यही रज़ात वाला मामला है, तो इसमें उसकी बात मोतबर होगी, उसके साथ और कोई गवाहियां साथ नहीं मिलाई जाएंगी। बकिया तफसील इंशाल्लाह आगे आएगी। बाकी ये उकबा रदी अल्लाह अन्हु ने जिस औरत के साथ शादी की थी उसका नाम गनिया था। जिस तरह सफिया हम पढ़ते हैं ना, उसी तरह गनिया लफज था, गनिया, जिसके साथ उन्होंने शादी की थी, गनिया। और कुनियत इनकी उम्मे याहिया थी। और जिस औरत ने दूध पिलाया था उसका नाम शारहीन ने नहीं लिखा, मालूम नहीं है। और जिस आदमी के साथ बाद में गनिया ने शादी की थी उनका नाम जुरैब था। जिस तरह खुबैब होता है उसी तरह जुरैब, जुरैब के साथ बाद में उन्होंने शादी कर ली थी। अगला मसला है बाब तनावुबी फिल इल्म, इल्म के लिए बारी बारी जाना, इल्म के लिए बारी मुकर्रर कर लेना। असल तो यह है कि इंसान चूंकि दुनिया में आया है और यहाँ माल कमाने के लिए तो नहीं आया, अल्लाह की इबादत के लिए आया। इबादत इल्म के बगैर कैसे हो सकती है? तो इल्म को वो हासिल करे। लेकिन इमाम साहब यहाँ बताना ये चाहते हैं कि बसा औकात कुछ हालात ऐसे आड़े होते हैं, कारोबारी दीगर मसरूफियात कुछ ऐसी होती हैं कि आदमी इल्म के लिए सारा वक्त अपना वक्फ नहीं कर सकता। तो इस सूरत में उसे क्या करना चाहिए? इल्म से महरूम ना रहे, बल्कि कोई ऐसी सूरत इख्तियार कर ले कि दोनों चीजें वो हासिल कर ले, दौलत ईमानी भी हासिल कर ले,
اور جو کسب اور معاش ہے اس کی پریشانی بھی اس کو نہ ہو، تو اس کے متعلق اسے باری مقرر کر لینی چاہیے، جس طرح کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عتبان بن مالک جو نبینے صحابی رسول تھے انصاری، یہ ان کے پڑوسی تھے، ان کے ساتھ کی باری مقرر کی تھی، ایک دن وہ کاروبار کرتے اور دوسرے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور ایک دن وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور یہ کاروبار کرنے کے لیے جاتے تھے، تو اس طرح کاروبار کی بھی دیکھ بھال ہو جاتی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو علم کی باتیں ہوتی تھیں وہ یہ ایک آدمی یاد کر لیتا اور آ کر دوسرے کو بتا دیتا، سبحان اللہ۔ امام صاحب پر اللہ رحمت فرمائے، کس طرح انہوں نے حدیث مبارکہ سے اس مسئلے کا بھی جو ہے وہ ثبوت فراہم کر دیا۔ امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابو الیمان نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی شعیب نے، وہ زہری سے بیان کرتے ہیں، زہری پر سند کا اختتام ہوا اور امام صاحب نے سند میں تحویل کی، اور امام فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ہے یونس نے، وہ ابن شہاب سے، یہ ابن شہاب ہی زہری ہے نا، تو زہری پر سند اکٹھی ہوگی، تو زہری جو ہے ابن شہاب محمد ابن شہاب الزہری، وہ آگے بیان کرتے ہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن ابو ثور سے، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ عمر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا کنت انا وجار لی، میں اور میرا ایک پڑوسی تھا، من الانصار انصاری، فی بنی امیہ، بنو امیہ بن زید کے محلے میں، گاؤں میں، وہی من عوال المدینہ، اور یہ مدینہ کے جو اوپر والے علاقے تھے مشرقی، اس کی بات ہے، وکننا نتا نا وبو، اور ہم باری باری جاتے تھے، النزولہ جانا، ہم باری مقرر کرتے تھے النزولہ جانے کی، اعلیٰ رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ینزل یومن، ایک دن وہ آپ کے پاس حاضر ہوتے، وہ انزل یومن، اور ایک دن میں آپ کے پاس حاضر ہوتا، فیضا نزل تو جئتو، جب میں جاتا، جئتو میں ان کے پاس لاتا بخبر ذالک الیوم، اس دن کی خبر، من الوحی وغیرہ، وحی وغیرہ کی جو خبر ہوتی میں آ کر ان کو بتاتا تھا، وَإِذَا نَزَلَ، اور جب وہ اتبان آتے تھے، فعل مثل ذلك، تو وہ بھی ایسا کرتے تھے، مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کوئی نئی بات ہوتی تھی وہ مجھے آ کر بتاتے تھے، فنزل صاحب الانصاری یوم نوبته، تو میرا جو انصاری ساتھی تھا وہ ایک دن اپنی باری پر گیا، تو جب واپس آیا تو فضرب بابی ضربا شدیدا، اس نے میرا دروازہ زور سے کھٹکھٹایا، فقال، اور کہنے لگا اسما ہو، کیا وہ یہاں موجود ہیں، ففزعت، کہتے میں گھر موجود ہی تھا تو میں گھبرا گیا، جس طرح اس نے آ کر زور سے دروازہ نوک کیا، اور پھر کہنے لگا سما ہو، کیا عمر بن خطاب یہی ہیں، تو میں ڈر گیا، عمر رضی اللہ عنہ کہتے میں گھبرا گیا، فخرجت الیہ، میں فوراً ان کی طرف نکلا، فقال، تو اس نے کہا قد حدث امر عظیم، بہت بڑا معاملہ پیش آ گیا ہے، قال، کہتے ہیں فدخلت، آگے حدیث حذف ہے، یہاں تھوڑا سا اس کا ٹکڑا ہے، کہتے ہیں فدخلت علی حفصہ، میں حفصہ کے پاس گئی، بیٹی تھی ان کی، مومنوں کی ماں، فیدا ہی تب کی، کیا دیکھا کہ حفصہ جو بیٹی ہیں عمر بن خطاب کی وہ رو رہی تھی، میں نے پوچھا طلقہ کنہ رسول اللہ، کیا تمہیں اللہ کے رسول نے طلاق دے دی، قالت لا ادری، انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، ثم دخلت علی النبی، پھر کہتے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقلت وانا قائم، کھڑے کھڑے میں نے کہا اطلقت نساءک، آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، قال لا، آپ نے کہا نہیں، فقلت اللہ اکبر، تو میں نے کہا اللہ اکبر، یہ حدیث آگے اصل میں ہم کتاب النکاح میں اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، تو یہاں جس مقصد کے لیے امام صاحب نے روایت پیش کی ہے وہ بالکل واضح ہے کہ آ، یعنی باری مقرر کی تھی ان دونوں صحابہ کرام نے آپس میں، اب یہ جو عوالی مدینہ میں رہتے تھے نا، ان کا شہر مدینہ سے تقریباً 3-4 میل کے فاصلے پر تھا، 3-4 میل کے فاصلے پر تھا، تو آپ اندازہ کریں کہ وہاں سے روزانہ علم کے لیے ایک بندے کا حاضر ہونا، علم کی مجلس، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس کے لیے، تو یہ اس کا یہاں سے اظہار ہے، اللہ اکبر کبیرہ، باقی اس کی تفاصیل انشاءاللہ کتاب النکاح میں آگے آئیں گی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، جی، باب الغضب فی الموعظة والتعلیم اذا رأى ما یکرہ، نصیحت اور تعلیم کے وقت غصے میں آ جانا، اذا رأى ما یکرہ، جب آدمی ناپسندیدہ چیز دیکھے، نصیحت اور تعلیم کے وقت ناپسندیدہ اگر کوئی آدمی بات دیکھتا ہے، اگر وہ غصے کی حالت میں آ جائے تو یہ کیسا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، غصہ جو ہے اس حالت میں
یہ تعلیم اور نصیحت کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں، نصیحت کرتے وقت غصہ آ جانا یہ بسا اوقات پسندیدہ بھی ہے، محمود بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت میں، خصوصاً خطبہ وغیرہ میں، زیادہ جوش اور غصے کے ساتھ بات کرتے تھے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آپ پڑھ رہے ہیں نا، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے، احمرت عیناہ، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، وعلی صوت، اور آپ کی بات بلند ہو جاتی، واشتد غضب، اور آپ کا غصہ شدید ہو جاتا، حتیٰ کہ انہ منذر الجیش، جیسے آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں۔ ہم؟ یہ صورت بن جاتی۔ اسی طرح جو تعلیم کا معاملہ ہے، تو تعلیم کے وقت بھی بسا اوقات غصے میں آ جانا، بلکہ یہ جائز کیا، مستحسن عمل ہے۔ جو بچے ہوتے ہیں، طلبہ طالبات، بسا اوقات استاد کی گستاخی کرتے ہیں جی، کلاس میں موجود ہونے کے باوجود سبق کو صحیح سے نہیں سن رہے ہوتے، یاد نہیں کر رہے ہوتے۔ اب ایسے ہی معاملات میں استاد کو چاہیے کہ وہ غصے ہو، غصے کا اظہار کرے۔ یہ غصے کا اظہار کرنا بھی سنت ہے، اور اس پر اس کو اجر ملے گا انشاءاللہ۔ تو جو اساتذہ ہر وقت ہی میٹھے میٹھے بنے رہتے ہیں، اور یہ ایک مستحسن عمل نہیں ہے، بلکہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں غصے کا اظہار ضروری ہوتا ہے، تاکہ طلبہ جو ہیں وہ اپنے کیے پر نادم ہو، غور و خوض کریں، اور استاد کی جو کا غصہ ہے اس کو سنجیدہ لیں۔ تو یہاں دو چیزیں الگ الگ ہیں، ان کو سمجھیے۔ غصے کی حالت میں واعظ و نصیحت کرنا، تعلیم دینا، یہ اور چیز ہے۔ یعنی اس کو آپ یوں کہہ لینا، غصے کی حالت میں دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز کیا ہے کہ آپ نصیحت یا تعلیم دے رہے ہیں، تو دوسری چیز ہے اس حالت میں فیصلہ کرنا۔ دو چیزیں الگ الگ، ان کو آپ سمجھیں گے۔ نصیحت اور تعلیم جائز ہے، نصیحت اور تعلیم جائز ہے غصے کی حالت میں، لیکن فیصلہ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری میں آگے آئے گا انشاءاللہ، 7158 نمبر پہ آپ نے فرمایا، لا يحكم احد بین اثنین وهو غضبان، غصے کی حالت میں دو لوگوں کے درمیان تم میں سے کوئی فیصلہ نہ کرے۔ تو فیصلے کی چیز اور ہے، جبکہ نصیحت اور تعلیم یہ مسئلہ اور ہے۔ ہم حدیث پہ مبارکہ پڑھتے ہیں، امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن کثیر نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی سفیان نے، وہ ابن ابی خالد سے بیان کرتے ہیں، وہ قیس بن ابو حازم سے، وہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا جاء رجل، قال رجل یا رسول اللہ، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، لا اکاد، قریب نہیں ہوتا میں، ادرک الصلاۃ، کہ میں نماز کو پاؤں، مما، اس وجہ سے، یطول بنا فلان، کہ فلاں بندہ نماز ہمارے لیے بہت لمبی کر دیتے ہیں، فلاں صاحب نماز کو بہت طول دے دیتے ہیں، اس وجہ سے میں نماز میں عمومی طور پہ شرکت نہیں کر پاتا ہوں۔ اب یہ اس نے معاملہ پیش کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو ابو مسعود انصاری کہتے ہیں فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ اشد غضبا من یومئذ، میں نے نہیں دیکھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نصیحت میں، کہ آپ کوئی نصیحت کر رہے ہو، اشد غضبا، زیادہ غصے میں آگے ہوں، من یوم دن، اس دن آپ نے پھر جو نصیحت کی نا، تو اس میں آپ بہت ہی زیادہ غصے میں آ گئے، کہ ویسا غصہ کسی اور نصیحت میں آپ کا نہیں دیکھا گیا۔ آپ نے غصے کی حالت میں آپ نصیحت کی ہے۔ تو باب کیا تھا، الغضب فی الموعظہ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ۔ تو آپ نے چونکہ اس بات کو ناپسند کیا نا، کہ اتنی لمبی نماز پڑھانا کہ لوگ متنفر ہو رہے ہیں پیچھے سے، غصہ آ گیا۔ اب غصے کی حالت میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ ابھی چونکہ غصہ ہے تو ٹھہرو، بعد میں کوئی بات کروں گا، نہیں، بلکہ غصے کی حالت میں آپ نے فرمایا ایوہ الناس، لوگو، انکم منفرون، تم نفرت ڈالنے والے ہو، اللہ اکبر کبیرہ، نفرت دلانے والے ہو، فمن صلی بالناس، تو جو لوگوں کو نماز پڑھائے، فلیخفف، تو وہ ہلکی پھلکی نماز پڑھائے، فإن فیہم المریض، کیونکہ لوگوں میں مریض ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، وذا الحاجہ، اور کوئی ضروری کام والے ہوتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت بہت زیادہ غصے کی حالت میں فرمائی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ صحابی رسول کون تھے جو غصے کی حالت میں، جنہوں نے لمبی نماز پڑھائی اور نبی علیہ السلام کو غصہ آ گیا؟ تو اصل تو یہ ہے، سطر مسلم کی وجہ سے صحابہ کرام نام نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ بغیر نام لیے ہی بات کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کا مبارک انداز تو یہی تھا۔ لیکن حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے، اور فرمایا کہ یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے۔
मुआद बिन जबल रदी अल्लाह अन्हु का वाक़या अलग है, वो भी इसी तरह का है, लेकिन वो इशा की नमाज है और ये फजर की नमाज की बात है। इसी तरह जो मुआद बिन जबल थे ना रदी अल्लाह अन्हु, वो मस्जिद बनु सलमा उसमें इमाम थे, जबकि उबई बिन काब ये मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ाते थे। तो दोनों वाकयात अलग अलग हैं। ये वाकया उबई बिन काब का भी सामने आया जिस तरह ये रिवायत है, और मुआद बिन जबल रदी अल्लाह अन्हु का भी सामने आया, उनका तो वाकया आगे आएगा ना, कि वो लंबी नमाज शुरू कर दी उन्होंने, नमाज इशा। तो पीछे जो पढ़ने वाला था वो नमाज के दौरान ही पीछे हो गया और उसने अपनी नमाज पूरी की और चले गया। नबी अलैहि इस्लाम के पास ये मामला है तो आपने फरमाया, अफत्तान अंत या मुआद, मुआद आप लोगों को आजमाइश में डालने वाले हैं। तो उनको भी आपने डांटा और कहा कि नहीं, इसमें वशम्सी वदुहाहा और इस तरह की जो सूरतें हैं, सूरतुल आला वगैरह, इस तरह की सूरतें पढ़ा करो इशा में, लंबी लंबी सूरतें ना पढ़ा करें। तो हदीस का बाब के साथ ताल्लुक किया है कि गुस्से की हालत में आपने नसीहत फरमाई। हम आगे चलते हैं। इमाम फरमाते हैं, हमें जिस बयान की अब्दुल्ला बिन मोहम्मद ने उन्होंने कहा, हमें जिस बयान की अबू आमिर ने उन्होंने कहा, हमें जिस बयान की सुलेमान बिन बिलाल मदीनी ने, वो रबिया बिन अबू अब्दुर्रहमान से बयान करते हैं, वो यजीद मौलल मुमबाइस से, वो जईद बिन खालिद जुहनी से रदी अल्लाह अन्हु, नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रजुल ने, एक आदमी ने सवाल किया, अनिल लुक़ता, गिरी पड़ी चीज के हवाले से, जो चीज गिरी पड़ी हो हम क्या करें उसको। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इरिफ, जान लो, पहचान लो, विकाहा, उसके बंधन को, तस्मे को। विका जो है ना, ये रस्सी को कहा जाता है, तस्मे को कहा जाता है जिसके साथ बोरा वगैरह बांधा जाता है। औ काला विआहा, या विआहा का लफज बोला। विआ जो है ना, ये आम बर्तन को कहा जाता है। व इफासहा, इफास जो है ना, ये चमड़े के बर्तन को कहा जाता है, थैली वगैरह। तो जो भी चीज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको याद रख लो, ये ना हो कि हर कोई और चीज का दावा करो और आप उसको दे दो, बल्कि कोई निशानियां होनी चाहिए पास। तो उसको जान लो, तुम मअरिफहा सना, फिर एक साल ऐलान करवाते रहो। तुम मस्तमतिअ बिहा, साल बाद अगर कोई नहीं आता वो चीज लेने के लिए, फिर उसको इस्तेमाल कर लो। फ़इन जा रब्बुहा, लेकिन फिर भी अगर उसका मालिक आ जाए, फ़अद्दिहा इलैहि, तो वो उसको अदा करो। ये रब जो है ना, रब जब अकेला रब लफज हो तो ये सिर्फ अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर ये रब मुजाफ होकर आए ना, इसके साथ इजाफत हो किसी चीज की, जिस तरह यहाँ हा का लफज है, हा की जमीर है, तो फिर रब तबारक व ताला के अलावा भी किसी और के लिए रब का लफज बोला जा सकता है, जिसकी वाज़ेह मिसाल आप नहव में पढ़ते हैं, रब्बु हाददार, रब्बुद्दार, रब्बुल माल, माल का मालिक, घर का मालिक। तो अकेला रब जो है वो सिर्फ अल्लाह के लिए बोला जाएगा। तो आपने फरमाया कि उसको उससे फायदा उठा लो, लेकिन अगर उसका मालिक आ जाता है तो उसको अदा करो। ये मसला आपने बता दिया, वाज़ेह है बात। लेकिन उसने आगे से सवाल किया, फजालतुल इबिल, गुमशुदा ऊंट के बारे क्या हुक्म है। फगज़िबा, तो आप गुस्से में आ गए, हत्ता अहमरत वजनताहु, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो रुखसार मुबारक हैं, ये वजना की जमा तस्निया वजनतान है, पेशानी के दोनों तरफ ये जो रुखसार है, गाल, ये मुराद है, तो ये सुर्ख हो गए गुस्से में। अव काला अहमर वजहू, या उन्होंने कहा कि आपका चेहरा ही सुर्ख हो गया। अब ये गुस्सा आ गया, गुस्से में आप खामोश नहीं रहे, बल्कि फरमाया, व मालक वलहा, तुझे उसके साथ क्या ताल्लुक, माहा सिकाउहा व हिदाउहा, उसके पास सिकाउहा, सिका का मतलब होता है मिशकीजा, तो मुराद उसकी कोहान है, क्योंकि वो कोहान के अंदर अपने पानी को कुछ दिन के लिए महफूज कर लेता है, तो उसके पास उसका मिशकीजा मौजूद है। व हिदाउहा, हिदा ये जूते को कहा जाता है, चप्पल, तो उसका जूता भी उसके साथ मौजूद है, मतलब अच्छे उसके वो कदम है, जो उसके खुर हैं, पाँव के जो सुम हैं वो मजबूत है। पानी उसके पास मौजूद है और बेहतरीन, वो ताकतवर है, वो भाग चल फिर चल सकता है। तरिदुल मा, पानी पर वो जा सकता है, पानी पीने के लिए जा सकता है। वो तरा शजर, और दरख्तों को वो यानी खा भी सकता है, चर भी सकता है। फदरहा, उसे छोड़ दो, हत्ता यल्काहा रब्बुहा, यहाँ तक कि उसका मालिक उसको मिल ले। जाहिर है आप अगर उसको उठाएंगे तो उसका मालिक उसको सही से तलाश तो नहीं कर पाएगा। तो ऊंट एक ऐसा जानवर है जो बगैर किसी आदमी के जिंदा रह सकता है, अपने मालिक के जिंदा रह सकता है। वो जहां भी जाता जाएगा, मालिक उसका पीछा करता करता कहीं तो उसको जाके उसको मिल जाएगा। फिर उसने पूछा, फजालतुल गनम, गुमशुदा बकरी के बारे क्या है। तो आपने फरमाया, लका औली अकीका औली ज़ेबिक, वो या तो तेरे लिए है, या फिर कोई तेरा और भाई उसको उठा लेगा, या फिर भेड़िया उसको खा जाएगा। मतलब बकरी को पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि ये खुद मुख्तार जानवर बहरहाल नहीं है।
अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, गुस्सा था, गुस्से की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की है, तालीम दी है सहाबी को, तो ये जायज़ है गुस्से की हालत में तालीम देना। तो हमारे यहाँ भी ये जायज़ है। अगरचे नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खासा भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह सुनन नबी दाऊद वगैरह में आप पढ़ चुके हैं, वो अब्दुल्लाह इब्न अमर बिन आस रदियल्लाहु अन्हुमा लिखा करते थे ना नबी अलैहि इस्लाम की हर बात। तो किसी ने कहा कि अल्लाह के रसूल बशर हैं, यतकल्लमु फिल गज़ब, आप गुस्से में भी बात करते हैं तो ना लिखा करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, नहीं, उक्तुब फवल्लदी नफ्सी बियदी मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक, लिख लिया करो, कोई हरज नहीं, क्योंकि मुझसे जो बात भी निकलती है, गुस्से की हालत में हो, रिजा की हालत में हो, वो सच्ची बात ही निकलती है। नबी अलैहि सलाम का मामला तो हमसे बहुत ही ज्यादा पाक साफ भी था इस हवाले से। बहरहाल इजाजत की हद तक हम सब के लिए भी है कि गुस्से की हालत में बच्चों पे गुस्सा आया हुआ है, इसके बावजूद बच्चों को आदमी पढ़ा रहा है, ये ठीक है। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम फरमाते हैं, हमें हदीस बयान की मोहम्मद बिन आला ने, उन्होंने कहा हमें हदीस बयान की अबू सामा ने। मुझे याद आ गया वो चलते चलते, वालिद गिरामी हाफिज़हुल्लाह से एक ने सवाल किया, और इससे पहले वो अब्बा जी को तंग कर चुका था बहुत ज्यादा साहिल। अब उसका सवाल क्या था, उसने एक आयत पढ़ी, कहा कि इसका तर्जुमा मुझे बताइए। तो अब वो गुस्से की हालत में है, उस तरफ उनका चेहरा भी नहीं है, लेकिन चूंकि आयत के मुतालिक उसने सवाल किया, तो उन्होंने अपनी तरफ जिस तरह उनका रुख था, आयत पढ़ी और उसका तर्जुमा कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये चीजें होनी चाहिए। जिस हालत में भी सवाल हो उसका जवाब देना चाहिए, आदमी गुस्से की हालत में भी हो, कोई आकर उससे सवाल कर ले, तो चूंकि शरीयत का वो इल्म पूछना चाह रहे हैं ना, उसको जवाब उसका देना चाहिए। जी, फरमाते हैं अबू मूसा रदियल्लाहु अन्हु, सुइलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अशिया करिहा, नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ चीजों के बारे सवाल किया गया, आपने उन चीजों को नापसंद किया। हर तरह के सवाल तो जायज नहीं है ना। फलम्मा उक्सिर अलैहि, जब कसरत के साथ आपसे वो सवाल किए गए, गाजिबा, तो आप गुस्से में आ गए। तुम काल लिन्नास, फिर गुस्से में आपने लोगों से कहा, सलूनी अम्मा तुम, जो चाहो मुझसे पूछ लो। फकाल रजुल, तो एक आदमी कहने लगा, मन अभी, मेरे बाप का क्या नाम है? आपने फरमाया, अबू का हुजाफा, तेरा बाप हुजाफा है। फकाम आखिर, एक दूसरा खड़ा हुआ, उसने कहा, मन अभी या रसूल अल्लाह, मेरा बाप कौन है अल्लाह के रसूल? आपने फरमाया, अबू का सालिम मौला शैबा, शैबा का जो आजाद करदा था सालिम, वो तुम्हारा बाप। फलम्मा रआ उमरु मा फी वजही, जब उमर रदी अल्लाह ने देखा उस चीज को जो आपके चेहरे में थी, वो क्या थी? वो गजब था, गुस्सा था। काल या रसूल अल्लाह इन्ना नतूबु इलल्लाहि अज़्ज़ा वजल, अल्लाह के रसूल, हम अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ तौबा करते हैं। अल्लाह अकबर कबीर। कुरान में असल में सूरतुल माइदा आयत नंबर 101 है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशिया इन तुब्द लकुम तसुकुम, अहले ईमान ऐसी बातें मत पूछो, अगर तुम पर जाहिर कर दी जाए तो तुम परेशान हो जाओ। इसलिए नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह करिहा लकुम क़ील वक़ाल व कसरत सुआल व इज़ाअत माल, तो कसरत के साथ ये सवालात क्या है? मना है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दरूनी मा तरक्तुकुम, मुझे छोड़ दो जब तक मैं तुम्हें छोड़े रखता हूँ। फइन्नमा हलक मन कान क़बलकुम बिकथरति सुआलिहिम व इख्तिलाफिहिम अला अंबियाइहिम, क्योंकि तुमसे पहले लोग ज्यादा सवाल करने की वजह से और अंबिया के साथ इख्तिलाफ करने की वजह से हलाक हुए हैं। तो इस तरह के सवाल नहीं करने चाहिए कसरत के साथ और फजूल सवालात। सही मुस्लिम में आप ये हदीस मुबारक पढ़ रहे हैं, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, ये सही मुस्लिम में रिवायत है, इन आज़म अल मुस्लिमीन फिल मुस्लिमीन जुर्मन, जुर्म के एतबार से मुसलमानों में से कौन सा आदमी ज्यादा बड़े जुर्म वाला है? मन सअल अन शैइन, जिसने किसी चीज के मुतालिक पूछा, लम युहर्रम अलल मुस्लिमीन, जो अभी तक मुसलमानों पर हराम नहीं थी, फहुर्रिम अलैहिम मिन अजली मसअलतिही, तो उसके सवाल करने की वजह से मुसलमानों पर वो चीज हराम हो गई। मुजरिम आदमी है ऐसा। तभी तो सहाबा किराम जो है ना, उनके बारे आप जानते हैं, वो उनकी कोशिश ये होती थी कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ ना पूछें। कहते हैं, फखाना युजिबुना अन यजिया रजुल मिन अहलिल बादिया अल आकिल फयसअलहु व नहनु नस्मा, हम चाहते थे कि कोई सहरा से कोई बद्दू उठकर आए और तरह तरह के सवाल करे, और फिर हम उससे इल्म हासिल करें। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए कुछ ऐसे के सवालात थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आ गए, लेकिन गुस्से में आपने आगे बात को जारी रखा, नसीहत भी की, यानी जिसने जो पूछा आपने उसको बताया भी। असल में ये इन्होंने अपने बाप का नाम इसलिए पूछा था, उस वक़्त चूंकि वो जहालत का दौर अभी ख़त्म हुआ था, इस्लाम का नया नया दौर था, तो इससे पहले जिना और इस तरह की चीज़ें भी आम थी। तो बाद लोग कुछ लोगों के बारे में उनके नस्ब में बातें करते थे कि तू तो हराम ज़्यादा है, अलियादु बिल्लाह, ऐसे के अल्फाज होते थे। तो गालिबन इस वजह से इस तरह के सवाल बाद सहाबा किराम ने किए, जब बताया गया तो वो खुश हुए इस बात पर
کہ مطلب ہم پر کسی بھی طرح کا جو الزام لگایا گیا ہے وہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات اس کا اظہار بڑا ضروری ہے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سلونی عما شئتم، جو چاہو مجھ سے پوچھو، یہاں سے بعض اہل بدع کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اس وقت علم کلی عطا کر دیا گیا تھا، تبھی تو آپ نے کہا کہ مجھ سے جو چاہو پوچھو، کیونکہ علم کلی آپ کو عطا کر دیا گیا تھا، سارے کا سارا علم آپ کے پاس آ گیا تھا۔ کیونکہ یہی روایت آگے جہاں آئے گی، یہ جو نمبر ہے 72 91، اور اسی طرح 72 91 کے ساتھ جو ہے نا 72 94 بھی، تو وہاں الفاظ کیا ہیں؟ فواللہ لا تسألونی عن شيء الا اخبرتكم به ما دمت في مقامی هذا، تو یہاں قسم آپ نے اٹھائی ہے کہ جو سوال کرو میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ تو یہاں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو علم کلی عطا کر دیا گیا تھا، ہر طرح کا علم آپ کو دے دیا گیا تھا۔ ارے بدبختو، ہر طرح کا اگر آپ کو علم دے دیا گیا تھا جس طرح آپ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت عالم الغیب بن گئے تھے، تو پھر ربی زدنی علما کی اللہ رب العزت نے حکم کیوں دیا؟ اس واقعے کے بعد آپ کی وفات تک جبریل آپ کے پاس علم لے کر کیوں آتے رہے؟ قرآن وقفے وقفے سے نازل پھر کیوں ہوتا رہا؟ جب علم کلی آپ کے پاس آ گیا تھا پھر تو اور کسی کی ضرورت باقی نہ رہی۔ تو یہ غلط بات ہے جن اہل بدع نے یہ بات کی ہے۔ اس کے متعلق میں تلاش کرتا ہوں، اگر وہ روایت مل جاتی ہے تو مسند مسند ابی یعلا میں اس حوالے سے ایک روایت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں یہ دیکھیں، یہ مسند ابی یعلا، اس میں الفاظ ہیں یہ وہی ہے نا، آپ تھے وہ غضبان، غصے کی حالت میں تھے، تو آپ نے لوگوں سے خطاب کیا تو کہا لا تسألونی عن شيء اليوم الا اخبرتكم به۔ صحابہ کرام کا دیکھیں، ونحن نرى ان جبریل معه، ہمارا یہ خیال ہے کہ اس وقت جبریل آپ کے ساتھ تھے جو علم لے کر آئے ہوئے تھے، تو جس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہونا تھا تو جبریل نے اللہ رب العزت کی طرف سے وہی کے ذریعے آپ کو بتا دینا تھا۔ تو یہ بات ہے اس کا، وہ نہیں ہے جو اہل بدع نے سمجھا کہ آپ کو کلی علم عطا کر دیا گیا تھا لہذا آپ جو ہے نا اس وقت علم غیب آ گیا تھا، یہ آ گئی، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ باب من برک علی رکبتیہ عند الامام اب المحدث، باب ہے من برک علی رکبتیہ، جو اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ یہ برکہ کا اصل لفظ استعمال ہوتا ہے جب اونٹ بیٹھتا ہے، تو اونٹ کیسے بیٹھتا ہے؟ اپنے آگے والے دو گھٹنے ٹیکتا ہے پھر بیٹھتا ہے۔ عند الامام، امام کے پاس، او المحدث یا محدث کے پاس، حدیث پڑھانے والے کے پاس، تو جو امام یا محدث کے پاس اپنے دونوں گھٹنوں پر بیٹھے اس بارے میں کیا ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ اصل میں نا دو گھٹنوں پر بیٹھنا یہ تشہد کی حالت اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا کہ آپ آج کسی اور استاد کے سامنے اس طرح بیٹھا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیں بھائی، دونوں چیزوں میں فرق ضروری ہے۔ جو حیثیت اس کی ہے، تشہد کی ہے، وہ اختیار نہیں کی جائے گی کسی استاد کے سامنے، وہ کسی استاد کے سامنے اختیار نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ ایک عبادت والی حالت ہے۔ ہاں آپ دو زانو ہو کر استاد کے سامنے بیٹھے ہیں تو جس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں باقاعدہ گھٹنوں پر آپ نے دونوں ہاتھ بھی رکھے ہوتے ہیں اور باقاعدہ ایک تشہد کی کیفیت ہوتی ہے، اس طرح آپ نہ ہو، دونوں ہاتھ سائڈ پہ کر لیں اور دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں، اس میں حرج کیا ہے؟ روایت وہی ہے جو بھی ہم نے پڑھی ہے، سند یہاں اور ہے اور وہی روایت ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من ابي؟ فقال ابوك حذافة، ثم اكثر ان يقول سلوني، فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت۔ اب یہاں جو باب کے ساتھ تعلق ہے وہ کیا ہے؟ فبارک عمر وعلی رکبتیہ، عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ جب یہ حالت دیکھی نا کہ آپ غصے میں بھی ہیں اور لوگ سوال بھی کیے جا رہے ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے، اللہ کے سوا اور ہمیں کوئی رب نہیں چاہیے، اسلام ہمیں کافی ہے اور کوئی دین ہمیں نہیں چاہیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے اعتبار سے ہمیں کافی ہیں، ان کے بعد ہمیں کوئی نبی نہیں چاہیے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے عمر رضی اللہ نے اس طرح کی بات کہی، فسکا تھا، تو آپ خاموش ہو گئے، مطلب آپ کا غصہ پھر ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو استاد کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھنا یہ بالکل جائز ہے، لیکن تشہد والا معاملہ میں نے ذکر کیا کہ اور ہے۔
हमारे यहाँ लोग चार जानू होकर भी बैठते हैं, चौकड़ी मार कर जिसको कहते हैं। और आजकल तो टेबल कुर्सी वाली चीजें आ चुकी हैं। हमारे यहाँ असातिज़ा तो हमें इन चीज़ों से मना ही किया करते थे, और कहते थे कि एक तालिब इल्म की जो शान है, जिस तरह हदीस जिबरील है ना, जिबरील नबी अलैहिस्सलाम से जब इल्म लेने के लिए आए थे तो दो जानू होकर बैठे थे। तो यहीं से उस्ताद इरशादुल्लाह कसरी साहब हफिज़हुल्लाह, उन्होंने इस बात का एक बार बड़े शद्दोमत के साथ इजहार किया था कि आज भी तलबा की ये कैफियत होनी चाहिए। जिबरील ने, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, जिबरील तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। तो दीन क्या है कि दीन की बात लेते वक्त उस्ताद के सामने मुअद्दब होकर बैठा जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अगला मसला है, अल्लाह अकबर कबीरा, बाबू मन आद अल हदीसा सलासन, जिसने बात को तीन बार दोहराया, लियुफहम अन्हु, ताकि उससे बात को समझ लिया जाए। इसी तरह नबी अलैहि सलाम ने भी फरमाया, अला व कौल ज़ूर। अब ये अला व कौल ज़ूर आप कहते रहे, फमा ज़ाला युकर्रिरुहा, आप इसको दोहराते गए। और इब्ने उमर कहते हैं कि नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हल बल्लगतु सलासन, हल बल्लगतु वाली बात आपने तीन बार बार इरशाद फरमाई थी। तो ये जो तलबा होते हैं, तालिबात होती हैं, जिनको हदीस पढ़ाई जा रही होती है, ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं ना कि सबका फहम एक नहीं होता, मुख्तलिफ होते हैं फहम। कोई बड़ी जल्दी बात को पिक कर लेता है, किसी को देर लगती है। तो उस्ताद को चाहिए कि वो बात को दोहराए, ताकि हर तरह से, यानी उसकी बात को सारे जो बच्चे उसके सामने पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे बात को सही से समझ पाए। तो ये जो कौल ज़ूर वाली रिवायत है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था ना, बड़े बड़े गुनाह कौन से हैं, ये आगे आएगा 2654 नंबर पर ये रिवायत आएगी। तो आपने फरमाया था, अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर सलासन, बड़े बड़े गुनाहों का ना बताऊं, तीन बार आपने फरमाया। साहबा कराम ने कहा, बला या रसूलल्लाह। आपने फरमाया, इशराकु बिल्लाह व उकूकुल वालिदैन। आपने इन दोनों का जब जिक्र किया ना, तो आप बैठे हुए थे, टेक लगाई हुई थी आपने, लेकिन आप फिर उठकर बैठ गए, मतलब टेक छोड़ दी। फिर आपने फरमाया, अला व कौलु ज़ूर, सुनो, मन गढ़ंत बात कहना ये भी कबीरा गुनाह है। फमा ज़ाल युकर्रिरुहा हत्ता कुलना लैतहु सकत। आप इसको दोहराते गए, अला व कौलु ज़ूर, अला व कौलु ज़ूर, अला व कौलु ज़ूर, हत्ता कि हमने कहा कि काश अब आप मतलब खामोश हो जाएं, आपने इस वक्त अपने आप को मुश्किल में डाला हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी तरह दूसरी हदीस मुबारक जो यहाँ उसकी तरफ इशारा है, तो ये वही है, खुतबा हज्जतुल वदा के मौका पर जब आपने चीज़ें इरशाद फरमाई, तो उस वक्त आपने पूछा था, हल कद बल्लगतु, मैंने पैगाम पहुंचा दिया। तो आप इसको अला हल बल्लगतु, अला हल बल्लगतु, तीन बार आपने कहा कि मैंने अपना पैगाम पहुंचा दिया। तो सहाबा किराम ने कहा, क्यों नहीं। तो बात को एक से जायद मरतबा दोहराना चाहिए उस वक्त कि जब खदशा हो कि हर एक को बात से इसे समझ नहीं आई। इमाम फरमाते हैं, आगे एक और रिवायत है, हमें हदीस बयान की अब्दा ने, उन्होंने कहा हमें हदीस बयान की अब्दुल समद ने, उन्होंने कहा हमें हदीस बयान की अब्दुल्लाह बिन मुसन्ना ने, उन्होंने कहा हमें हदीस बयान की सुमामा बिन अब्दुल्लाह ने। वो अनस रदियल्लाहु अन्हु से बयान करते हैं, और नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अन्नहु काना इदा सल्लमा सल्लमा सलासन, आप जब सलाम कहते थे ना तो तीन बार सलाम कहते थे। वह इदा तकल्लम बिकलिमतिन, और जब आप कोई गुफ्तगू फरमाते, अआदहा सलासा, तो उस बात को तीन मरतबा आप दोहराया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी तरह यहाँ अगली रिवायत है, उसमें भी यही अल्फाज है, अनस रदियल्लाहु अन्हु की रिवायत है ये भी। और इसमें भी है, इदा तकल्लम बिकलिमतिन आदहा सलासन हत्ता तुफहम अन्हु, यहाँ तक कि वो बात आपसे समझ ली जाती। व इदा अता अला कौमिन, और जब आप किसी कौम के पास आते, फसल्लम अलैहिम, उन्हें सलाम कहते, तो सल्लम अलैहिम सलासन, तीन मरतबा आप उनको सलाम कहते थे। ये जो तीन मरतबा सलाम वाली बात है ना, इसके मुतालिक मुख्तलिफ एहतिमालात हैं। इसको उलमा ने बल्कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का जो मकसूद है ना, वो भी यही मालूम होता है, जिस तरह आगे 6245 नंबर पर रिवायत आएगी। तो सलाम की यहाँ पर आप कह लें कि दो सूरतें हैं। एक होता है, इसको कहते हैं सलाम मुरूर, सलाम मुरूर, मतलब गुजरते हुए किसी को सलाम कर लेना, ये जाहिर है ये एक बार ही होगा। दूसरा सलाम क्या है, सलाम इस्तिज़ान, सलाम इस्तिज़ान, इजाजत मांगने का सलाम। क्या आप किसी के घर जाते हैं, दरवाजा नोक करते हैं, सलाम अलैकुम, आगे से जवाब नहीं आता, फिर कहते हैं सलाम अलैकुम, जवाब नहीं आता, फिर कहते हैं सलाम अलैकुम,
जवाब नहीं आता फिर आपको वहां से वापस चले जाना चाहिए। तो सलाम इस्तिज़ान जो है ये 3 मरतबा है। बाज ने और भी एहतमालात पेश किए हैं। जिस तरह के एक एहतमाल क्या है कि आप कहीं जाते हैं, अल्लाह अकबर, लोगों के पास आप जाते हैं, यह है ना, इदा अता अला कौम, जब किसी कौम के पास जाते हैं, तो यहीं से हाफ साहब ने गालबन ये लिखा है फतुल बारी में कि आप जाते हैं तो सलाम लेते हैं, इजाजत वाला सलाम। एक सलाम हो गया। दूसरा सलाम जब उनके पास जाकर बैठ जाते हैं, मिलते हैं, एक सलाम उस वक्त करते हैं, 2 सलाम हो गए। तीसरा सलाम जब उनसे वापस उठकर आते हैं, तीसरा ये सलाम है। इसी तरह इसका एक और एहतमाल भी है, और वो क्या है कि मजमा बहुत ज्यादा है। आप गए हैं तो आपने सलाम कहा, एक सामने कहा, एक दाईं तरफ कहा, और एक बाईं तरफ कह दिया। इसी तरह मजमा बहुत ज्यादा है। आप मजमे में दाखिल हुए, और मजमे में दाखिल होते ही आपने सलाम कहा। दूसरा सलाम आपने मजमे के वस्त में जाकर कहा। तीसरा सलाम आपने आगे जो लोग बैठे हुए थे उनको जाकर कहा। ये सारी चीजें भी ठीक है। अल्लाह अकबर। सलाम इस्तिज़ान के हवाले से जो है ना, वो एक रिवायत याद आ गई, सही मुस्नद अहमद में सही सनद के साथ है। ये 14,799 रिवायत है मुस्नद अहमद की। अ, उसमें अल्फाज क्या हैं कि साद बिन उबादा रदी अल्लाह अन्हु थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर गए, तो आपने इजाजत मांगी, और इजाजत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम कहा। अल्लाह अकबर कबीरा। मा सल्लम तो, जी ये रिवायत आ गई। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबा किराम की मोहब्बत भी देखें नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और आपसे दुआएं लेने का तरीका भी जरा देखें, और जहानत और फतानत भी देखें। अब साद रदी अल्लाह को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम कह रहे हैं। साद क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं आपका सलाम, जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन जवाब ऐसे का दे रहे हैं कि नबी अलैहि सलाम तक आवाज ना जाए। अल्लाह अकबर। आपने जब 3 अपने सलाम पूरे कर लिए, तो फरज अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 सलाम आपने पूरे किए तो फिर आप लौट गए। इतने में साथ पीछे आ गए और कहने लगे, या रसूलल्लाह भी अभी अंत व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, माँ सल्लम तस्लीमत इल्लाहि अबी उदनी। आपने जो सलाम भी किया ना वो मेरे कान में पड़ा था, आवाज आई थी। वलक़द रदद्तु अलैका वलम उसमिअका, मैंने आपको हर सलाम का जवाब भी दिया है लेकिन आपको सुनाया नहीं है मैंने। अहबब्तु अन अस्तक्सिर मिन सलामिक, मैं चाहता था कि आप ज्यादा मर्तबा सलामती की दुआ मुझ पर भेजते रहें और बरकत की दुआ मुझ पे करते रहें। फिर अपने घर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गए। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये है सलाम का मतलब कि 3 मरतबा सलाम, यानी इससे सलाम इस्तेज़ान मुराद है। जी आगे है, इमाम फरमाते हैं, हमें इस बयान की मुसद्दद ने, उन्होंने कहा हमें इस बयान की अबू अवाना ने, वो अबू बिशर से बयान करते हैं, वो यूसुफ बिन माहिक माहक से, वो अब्दुल्ला बिन आमर से। यूसुफ बिन माहक इसको पढ़ेंगे आप। जी वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे एक सफर में पीछे रह गए, ये रिवायत हम पहले पढ़ चुके हैं ना। फअदरकना वक़द अरहकना सलाता सलात अल-असरी व नहनु नतवद्दअ फजअलना नमसहु अला अर्जुलिना फनादा बिअला सौती वैलुल लिलअक़ाबि मिनन नार मर्रतैन व सलासा। ये रिवायत आप पीछे पढ़ चुके हैं। जहाँ था ना इल्म की आवाज को बुलंद आवाज के साथ कहना, मन रफा सौतहु बिल इल्म, इस तरह करके आपने बाप पढ़ा था, तो उसमें ये हदीस गुजर गई है। यह इमाम साहब ने जिक्र क्यों किया कि आपने वैलुल लिल आक़ाब मिनन नार 2-3 मरतबा कहा था। तो बात को एक से जायद बार दोहरा लेना चाहिए, ताकि जो मुखातबीन हैं वो अच्छे से बात को समझ लें। जी हमें इसी पर इक्तिफा करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।